So there are a lot of people who want to know Suman's detailed current feelings towards each other. At the same time, there are a lot of people again who want to know detailed current feelings about Priyankit. Okay, Priyankit. So what is that they are feeling currently towards each other? This is what many people want to know. So there are a lot of people who also kind of demanded that Priyankit's reading should be done every day. So I don't know how many of you would be interested in watching this reading, but anyhow I'm taking the reading. But I understand there are a lot of people who are Suman's fans and they are not liking this idea that their reading has been combined with other couples reading. I know it, but then what can I do, yaar? You should understand these people, they are like kind of pestering. But I would say, okay, if you like, see, I am here, I am a tarot card reader, I like it, I like doing reading, and I definitely like doing reading for everybody, in fact, but at the same time I also need to understand that majority of you like it or not, isn't it? So your interest is also of a great importance to me. It does matter to me when I see you people liking it or you people not liking it. So yeah, so there is a lot of energy investment over here, my time, energy, everything, but then it should be worth, isn't it? So मेरा यहाँ पे मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को entertain करूँ, मेजॉरिटी के डिमांड को कंसिडर करते हुए रीडिंग करूँ. तो यस, सुमान फैंस बहुत सारे हैं इसलिए उनकी रीडिंग ज़्यादा होती है, बहुत ऑब्वियस सी बात है. प्रियंकित के फ़ैन भी आएंगे तो नेचुरली उनकी रीडिंग भी उतनी ही एनर्जी के साथ ली जाएगी. मैं एक साथ दोनों रीडिंग अलग अलग 2 वीडियोस भी बना सकती हूँ, बट आई शुड अंडरस्टैंड कि जब मैं एनर्जी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मेजॉरिटी देख भी रही है ना उसे, है ना. तो चलो, भाषण तो हो गया, चलो अब रीडिंग शुरू करते हैं. दो आई एम टेकिंग डिटेल रीडिंग ऑफ 2 कपल्स नाउ. Okay, so detailed reading doesn't mean that it is going to be a very long reading, taking hours and hours together to complete only one couple's reading. It's not like that. Reading, when you're doing the reading, your main aim is to see that it is giving you some kind of a clarity, okay, and the reading looks complete. This is what you should aim for, okay. This is what you should concentrate on. The length doesn't matter. Sometimes tarot cards are so supportive that they give you very clear energies and you are able to read the energies very fast, very easily. But sometimes it takes a lot of time. It shows you something else first and then your answer in the end will be replied. This is what most of the time tarot does. ओके, सो तुम्हारी अगर रीडिंग जल्दी रैप अप हो रही तो मान को चलो आपकी एनर्जीज जो हैं वो ज़्यादा पसंद आ रही है टैरो को और जल्दी से वो फिनिश कर रहा है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे. ओके, तो यस गाइस, नमस्ते टू ऑल एंड दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. सो एज आई ऑलवेज से बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द रीडिंग, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करते नहीं तो कर्मा आपका ठीक नहीं रह सकता है. और एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद आप लोग करते नहीं. फिर आपको वो कंटेनमेंट, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं एक कार्मिक डेप्थ में आप लोग भी घुस जाते हैं. तो उससे बचने के लिए प्लीज़ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना कभी मत भूलिए. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग. ओके, यस. सो चलो शुरू करते हैं रीडिंग. हम लोग हाईलाइटेड एनर्जी तो ले लेंगे फर्स्ट. सो वी आर गोइंग टू बी टेकिंग द हाईलाइटेड एनर्जी फर्स्ट. सो exchange of energy is very important, guys. As I told you, express your gratitude towards the universe, whichever form you feel you can do. Please do that and save yourself from karmic debts. Okay, तो ये है ये ले रही हूँ मैं सुमान की रीडिंग. ठीक है, ये ब्लू पेंसिल जहाँ आपको दिख रही है यहाँ पे सुमान का रखूँगी मैं.
ये जो येलो पेंसिल दिख रही है ये रहेगी हमारे प्रियंकत की रीडिंग। ओके, आ गया समझ में? वेरी गुड, यू गाइस आर रियली वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो दिस इज सुमन का, दिस इज प्रियंकित का। मैं एक साथ दोनों की लूँगी। यस, I'll keep you engaged throughout the reading and I will see that you are watching the reading till the end. Okay, तो यहाँ पर हमने ली है सुमान की हाईलाइटेड एनर्जी। ये आया है एंड, तो कुछ एंड होने वाला है, क्या है वो अल्लाह जाने। ओह, कैन यू जस्ट बिलीव दैट दिस इज न्यू बिगनिंग। एंड और न्यू बिगनिंग एक साथ आया है, तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। देखिए, इफ यू आर पॉजिटिव, what is that you would think? Okay, end. So end of what? End of the separation patch going on, end of the fight going on, end of the hatred which they have for each other, jealousy, resentment, and all of those things, end of those energies. Okay, an optimist will think this way, a pessimist will think, or a person who's a hater or who's jealous of them may think अरे end of their relationship, end of their love, end of everything between them, है ना? ये अब देखते हैं कैसा होता है। प्लीज़ कीप योर एनर्जीज न्यूट्रल एंड बी पॉजिटिव। न्यू बिगनिंग, तो कुछ naturally something ends to have a new beginning only. Ending means what? Ending means ending of something and beginning of something else. So this is what इनकी एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं ये भाई साहब की एनर्जी क्या है ये बहन जी के साथ। तो प्रियंकित, ओके, अंकित एंड प्रियंका। पेरेंट्स, कल इनका फैमिली इशू आया था ना, आज पेरेंट्स आए। मानो ना मानो यार, आप लोगों को थोड़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो इन लोगों का पेरेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है कुछ। नीड्स टू बी पेशेंट, तो पेरेंट्स के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ बातें हो रही होगी, या फिर आई डोंट नो, सम काइंड ऑफ अ टॉक बिटवीन देम, सम काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट, सम काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, something to be clarified or something, I don't know, and that is the reason it is this card needs to be patient। तो पेरेंट्स के बीच में कुछ अगर ऐसा हो रहा होगा तो इनको पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर देम। ओके गाइस, सो लेट अस decode these energies with the help of the tarot cards. So what I'm going to be doing is, this card I'm going to be using for Fehman, and this cards, Fehman matlab Suman, and these cards I'm going to be using for Priyankit। Okay, got it? सारे कार्ड हम अपराइट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विल ट्राई टू सी दैट वी आर रीडिंग ऑल द कार्ड्स अपराइट ओनली। ओके, या सो यस, दीज आर द कार्ड्स। आई एम गोइंग टू बी डूइंग द ऑरा क्लीनिंग ऑल्सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, उसका क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आई डू दैट। बहुत शोर कर रही है ना, दे मेकिंग टू मच नॉइज, सॉरी। फर्स्ट भी नहीं रहे, देखा, दे आर नॉट गोइंग इनसाइड, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू बी डूइंग, क्या पेशेंट रहो, आपको पहले ही बोला गया, क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हैं भाई? क्या these cards are so small, you know, it becomes really difficult to shuffle them, but then chalta hai। Okay, cards, you know, cards I can buy, yes, there's it's not a big thing to buy the cards or something, but if you get the cards from someone, it gives all together a different effect, you know,
तो ये कार्ड्स मुझे किसी ने दिए थे, प्रेजेंट किए थे, और ये कार्ड भी मुझे प्रेजेंट में ही मिला। मैंने आज तक कोई कार्ड्स ख़रीदे ही नहीं है। तो अभी मुझे किसी ने ओरेकल कार्ड्स का गिफ्ट करना है, किसी का ऑर्डर आया है जो शायद आने वाला है कभी आजकल में। आप लोग को भी किसी को अपने मनपसंद का कोई टैरो डेक है आपका और आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल शान से। ओके, yes, if you want to gift tarot card of your own choice or your favorite deck, something if you feel that I should be reading, doing the reading through those decks, then you can gift me. And again, I haven't done for you, but these cards, okay, I have not used them for your reading, but I do reading with this also. These are called cartomancy. I should not be explaining to you about it, but through this normal cards that I do the reading. Okay, this also I'll be doing someday for you. So these cards also I have. So I basically concentrate only on tarot reading. So I use only tarot deck. So oracle deck I am not using. Angel energies deck I am not using. There are so many other witchcraft, this, that, and so many other decks are there that I'm not using. I'm concentrating only on tarot because it's tarot reading here. And other cards, they depict all the energies so very clearly and everything is written over there. I don't find it challenging. So that is the reason I use only these cards, tarot cards. They're very challenging. I like taking up challenges in my life. So simply taking out the card and reading out the energy, मुझे मज़ा नहीं आता उसमें। ठीक है, ये हो गया। आप शुरू करते हैं रीडिंग को। आई होप यू आर एबल टू सी द कार्ड्स। Okay, so I'm beginning the reading with Suman's energies. So their current feelings towards each other. Suman's current feelings towards each other. Three of Pentacles, a very good card to begin with. Ten of Swords, King of Wands, the Fool, Ten of Pentacles, King of Pentacle, Empress. Okay. This is Feman's energies towards Sumbul. Okay, so I am taking separately and then mutual energy also we are going to be finding out. So in Feman's case, Feman does want to talk to Sumbul. He does want one meeting at least with her. And he believes in teamwork, and he also feels that when they were working together, it was altogether a very different kind of an experience. Okay, but right now क्या हो रहा है, ये जो 10 of Swords इनका आया है वो इसलिए इतने ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं क्योंकि अभी ऐसी कोई इनकी काम से रिलेटेड मीटिंग नहीं हो पा रही है, और अगर हुई भी है तो ही डिड नॉट गेट राइट काइंड ऑफ अ कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम सुम्बुल। उसको नहीं मिला बिल्कुल। ठीक है,
ही माइट हैव ऑफर्ड हर समथिंग, कुछ उन्होंने उसको ऑफ़र किया होगा और वहाँ से उनको रिजेक्शन मिल गया है, या फिर मुलाकात का मौका ही नहीं मिला, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एनी हाउ ये सारी चीज़ के चलते दिस गाय इज स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट एंड हो सकता है उनको शायद उस दौरान सुम्बुल का एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव लगा, तो ही माइट बी थिंकिंग कि अरे नहीं, ये थोड़ा सा एटीट्यूड शो कर रही है। ओके, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं जो ये दिख रहा है, और ये एंडिंग दिख रहा है। तो मुलाकात की ख्वाहिश में एंडिंग जो हुई है, यानी जो हो नहीं पाया, जो सोचा था, तो वो सोच के कहीं चुपचाप नहीं बैठे हैं। ओके, ही स्टिल लाइक ओके शी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ अस, शी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी, ओके नो प्रॉब्लम, बट लेट मी पुल माई सॉक्स अप एंड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो ऐसे एनर्जी में ये भाई साहब हैं, एंड न्यू बिगनिंग भी दिख रही है इनकी, तो ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू फॉर हिमसेल्फ फॉर श्योर। ओके, या 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इनका रिज़ल्ट कैसा निकलेगा, तो इनका रिज़ल्ट अच्छा ही निकलेगा। माइनस सिंबल ऑल्सो यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं ये। ओके, ही इज़ थिंकिंग even this project, if he starts working in minus symbol also, it is going to be doing good, fairly good in fact wonders also he feels that it can do। ऐसा कॉन्फिडेंस है किसको, इस बंदे को है, तो ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी अभी। ओके, ये न्यू बिगनिंग से काफ़ी होपफुल दिख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अबंडेंस क्रिएट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स यस, ये जो एनर्जी आई हुई है एम्प्रेस की, इसको मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये कौन है, ये मम्मी डैडी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा मिंटोर, कोई मदर फिगर, फादर फिगर, या फिर कोई ऐसे अबंडेंट लोग जो हैं, उनके साथ टीम अप है इनकी, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये खुद ही ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही जैसे ये फैमिली आया, तो किसी ने लास्ट इसमें कहा था यस होम प्रोडक्शन है इनका कोई, तो होम प्रोडक्शन भी दिख रहा है इनका। ये जैसे ये कार्ड एक डायरेक्टर का भी हो सकता है, तो किसी ने कहा था ही इज़ डायरेक्टिंग, तो यस हो सकता है, बिकॉज ही इज़ लाइक टेकिंग अप अ चार्ज एंड marching on to do something, or deriving work from people, तो ये दिख रही है वो एनर्जी। ओके, एंड दिस इज टीम वर्क जो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो रिज़ल्ट इसका अच्छा ही निकल सकता है, अबंडेंस क्रिएट हो सकता है। अब ये फिर भी हम विल ट्राई टू क्लैरिफाई द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस ओवर हियर। ओके, वाओ, कोई मेंटोर, मैंने बोला था कोई मेंटोर ही हो सकता है। हार्ड वर्क, फैमिली पर्सन भी हो सकते हैं वो। ओके, ओके, ये न्यू बिगनिंग आ गया, तो यस he'll have to fight a lot to get success. As I told you in the last reading also, it's not going to be bed of roses for them. They'll have to, there will be a lot of outside entities in interference also. Okay, they'll have to work very hard also towards getting something concrete. तो ये है कि भाई अबंडेंस क्रिएट करना है, कुछ कॉन्क्रीट लाइफ में लाना है, लॉन्ग टर्म के लिए लाना है, तो हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। लोगों का जो इंटरफेरेंस होता है या फिर कोई चैलेंजेस आते हैं, तो उसको भी फेस तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके अबंडेंस कोई क्रिएट हो सकता है ना। तो ये तो दिख रहा है इनका मुझे, और एक न्यू बिगनिंग दिख रही है इनकी जो पेज के फॉर्म में आई है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई गेट, कि ये अभी विदाउट माइनस सिंबल जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें काफ़ी इनको होप है। ओके, दिख रहा है। तो इनकी अगर हम फीलिंग्स की बात करें, तो इनकी फीलिंग्स तो उनके लिए
अभी भी बावजूद इसके कि they have problem between them, okay, and she's refusing to cooperate with him, yes, and she may also be refusing to begin something new with him, maybe, I don't know. But then this guy, he still feels for her, and yeah, this kind of a relationship is what he's looking for with her, okay, and he still sees her like this empress. So, and this, so he is very dedicated and devoted towards her, loyal person, okay. So if these three cards, if I take, he wishes to have a very strong and a long-term relationship with her, and he's ready to begin that with her, to give a new chance to this relationship. This is what he feels. तो ये चाहते हैं कि इनके साथ एक लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप हो. अभी भी उनको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा उन्होंने, यू नो, केप्ट हर ऑन अ वेरी हाई पेडेस्टल. बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी अभी भी. उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग, यू नो, जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी होगी. ये रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं. ये है उनकी फीलिंग सुम्बुल के लिए, ओके. बावजूद इसके कि देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट देयर यूनियन, मे बी, ओके. अब ये देखते हैं कि सुम्बुल की करंट फीलिंग्स क्या हैं रहमान के लिए. सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. म्यूचुअल एनर्जी यही आ गई थी इनकी, ओके. सो सुम्बुल्स फीलिंग्स टुवर्ड्स रहमान. 8 of Wands, Nine of Wands, Judgment. Oh. बंदी भी चाहती है कि मैं भी मिल हाँ मेरे यार नाल. वेरी गुड. पर देखो इसको, पापा कहते हैं बड़ा नाम. गाना मत गाओ, कॉपीराइट है, मुश्किल. ओह, हे भगवान, हे परमात्मा, हे मौला, हे आका, हे मेरा अल्लाह, देखो क्या आ गया. उनके इसमें ये आया था किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस. यार ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी टाइप देखते हैं और दे लव ईच अदर. भूल जाओ ये सब, रहने दो ये सब. क्या है ये, दे लव ईच अदर. दिस गर्ल ऑल्सो, शी, यू नो, शी विशेस टू meet him and all, but she's keeping deliberately on hold, and she's acting as if she's you know, indifferent to him or something like that. But then yes, she also has these feelings towards her, or maybe parents maybe having some problem, okay, but she feels that okay, one sorry can mend the entire thing. This is what she has, this fear of talking to her. She does want to talk, but she has this fear talking to her. She doesn't know what to talk to her, how to start this, that. She feels sorry about something. She feels that she's done something wrong. Yes, she knows it. Sorry to give what? To forgive and to receive forgiveness, both, okay. And yes, this feelings she has. See, can you see both of them? They are looking at each other with the cup of loves in their hands. This one, she wants to open up. This one has already expressed his love towards her. May not be I love you, I want to marry you, but by gestures like taking care of her, you know, knowing about her whereabouts, and how is she doing in her life, and also trying to see that both of them are together. So taking some kind of an initiative, you know, from his side. ये ऐसा कर रहे हैं भाई साहब. तो ये है, और ये दिख रहा है रिकन्सिलिएशन. तो यस, ये भी जो है इनके
इनसे बात करना चाहती है, डरती भी है कि भाई कैसे शुरू करूं, गलतियां इन्होंने भी की हैं, इनको पता है, सॉरी भी फील करती है, सॉरी जैसा चीज़ बोलने में ये नहीं वो होगी, और एक्सपेक्ट करेगी कि सामने वाला भी उन्हें सॉरी कहें, मीट करना चाहती हैं उनको, टीम वर्क भी करना चाहती हैं, लेकिन जानबूझ के ये होल्ड करके रखे हुए हैं भाई बहन ने, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स भी इनके लिए ऐसी दिख रही है, पति पत्नी मियाँ बीवी टाइप्स, भले ही शादी करे या नहीं करे वो हमको नहीं मालूम गाइस, ओके, वी डोंट नो, बट देन शी हैज़ दिस फीलिंग, this type of a feeling towards this guy. She's keeping on hold for some time. I don't know how long will she do that, but she's doing it. Maybe I don't know for what sake she's doing. I don't know. Okay, तो ये है इनके feelings. अरे दिला भी चलो, तुम लोग क्या बेवकूफ़ बन रहे हो कि ये सब नहीं होने वाला है। वेरी गुड फीलिंग्स, ओके, चलो ठीक है, नाइस रीडिंग, ओके, टेंशन वेंशन ख़त्म करो। इनके बीच में ये जो है प्रॉब्लम, देखो मैं बताती है, ये फियर वाला जो फैक्टर है, ये पॉज वाली जो एनर्जी है, ये ज़रूर एंड होगी इनके बीच में और एक न्यू बिगनिंग होगी, ओके। और वो इनिशिएटिव मुझको लगता है शायद वो करेगा, फहमान करेंगे, दिस इज़ व्हाट आई गेट। चलो लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रियंकित्स रीडिंग नाउ। मैदान से भाग गए होंगे सुमान वाले, अभी प्रियंकित आ गए, चलो जाते हैं अपन लोग, प्रियंकित का क्यों देखना, ऐसे ही होगा ना तुम लोग का। चलो लेट अस सी प्रियंकित्स रीडिंग। So Ankit's feelings towards whom? Priyanka. ये हॉर्स पावर की एनर्जी लेके अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? प्रियंकित ऐसा भी फील कर सकता है, मेरे को ना सोच के हंसी आ रही। हाँ, प्रियंकित ऐसा भी फील कर सकता है, ऐसा सोच के आई एम फीलिंग लाइक लाफिंग माई लंग्स आउट that this guy is having this kind of an energy towards Priyanka. So this guy is really too passionate about her. At the same time, I think they have this kind of a connection with each other. Okay, so no commitment, but lot of fun, lot of cozy moments and all that stuff. समझ आएगा? नहीं समझा? दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो और समझो, समझे? मेरे अंकित भैया, अरे मेरे शेर। ओके, ये आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड में क्या हो रहा है, भाई साहब तो जा रहे हैं अपना पूरा हॉर्स पावर, अपनी पूरी एनर्जी लेके, देखो वर्ड यूज़ करना चाहती है, आई एम नॉट यूजिंग इट, लेकिन ये बहन जी जो है ना, एक इनका डर लग रहा है। ये कौन है ये बहन जी, देखना पड़ेगा, बट ही स्कैर्ड ऑफ दिस पर्सन। वाह, घर में से कोई बंदा या बंदी है जो बोलता है शादी के पहले कुछ नहीं मांगता, ऐसा भी कोई हो सकता है इनके लाइफ में। अरे इतना ज़्यादा मिलना जुलना, इतना क्लोजनेस, इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना नहीं चाहिए अभी आपको, थोड़ा शादी हो जाए, ऐसे टाइप की किसी की एडवाइस है इनको, ओके। ये फैमिली वाले ही दिख रहे, नीड्स टू बी पेशेंट, ओके, I understand that, oh, you have this vigor and vitality, oh, you are a young guy, I know your passion, I know your attraction towards this dame, but you need to be patient my dear until you get married to this girl। ऐसी वाली एनर्जी में है कोई बंदी या बंदा जो इन्हें समझा रहा है। शादी के पहले नको करो ऐसा बोल रहे हैं, ओके। ये आया है इनकी मदर का फीलिंग हो सकता है, या मदर फिगर जो होती है ना, औरतें जो होती हैं, उनकी एनर्जी है ये सब, ओके।
हम्म तो ये आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स आया ना। तो इनके बीच में एक प्रॉब्लम भी चल रहा है, इनके बीच में ऐसी एनर्जी जरूर रही होगी, और इनके बीच में एक डाउट भी चल रहा है। ये हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन बाद में कहानी का ट्विस्ट देखो कैसा हुआ कि ये भाई साहब का किसी और जगह कुछ चक्कर तो नहीं है, ऐसा फील हो रहा है किसको, शायद प्रियंका को हो रहा है। ओके, दीज आर अंकित्स फीलिंग्स टुवर्ड्स प्रियंका। तो प्रियंका के लिए ये फील कर रहा है कि प्रियंका इसके ऊपर अननेसेसरी डाउट क्यों कर रही है, और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका इसके ऊपर डाउट कर रही है कि ही इज़ गोइंग अराउंड हेयर एंड देयर, यू नो, एंड वो अब इससे बात करना पसंद नहीं कर रही है, यू नो, या चिड़ी हुई है या कुछ है, यू नो, या घर पे ऐसा कुछ वो कह रही होगी। तो इस बात को लेके ये बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं। कौन? अंकित। तो ये है इनकी एनर्जी एक्चुअली। ओके, हालांकि उनकी फीलिंग्स इनके लिए ऐसी है, इसमें कोई गलत नहीं है, हमें वो सही है। तो ही इज़ फीलिंग दैट प्रियंका इज़ अननेसेसरीली डाउटिंग ऑन हिम, and maybe if he's done something behind her back, but then he's not liking the fact that this girl, you know, this female is doubting on her, and on the basis of a doubt she may be becoming extra defensive, and maybe you know, to defend herself or to prove her point, maybe talking to him in such a manner which may be something wherein this guy is feeling really very offensive. So ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे. Okay, so this guy is like, oh, so you're doubting on me, oh, so now you feel that I'm disloyal to you, oh, so okay, I don't want to take any kind of a shit. This is what this guy is saying. Okay, so your family people are also saying this, or people who are around you, who you are very close to, they are also doubting on me, or what? So he is not liking this idea. Okay. Chariot. Okay, so for time being, this guy, he wants to put an end to this. So he's moving. He's moving out. Moving out means he's not moving on, but he's moving on for. He's moving out of the current situation for time being. Okay, doesn't want to talk much about the situation. He wants to put an end to the entire scenario, which is not very pleasant. Okay, because there's a lot of doubt and there's some kind of a disloyalty this guy might have shown towards this girl, or maybe this girl is doubting on him, whatever the case is, or he might have gotten caught doing something wrong which she did not like, I don't know, or she imagined that way, and there may not be any ounce of truth there, but she is imagining that way. So for timing, he wants to put an end to this thing by being away from the current situation. Okay, तो ये है. तो अभी इनको लग रहा है कि ये बड़ी नाराज़ हैं, इनको इन पे शक है, और इन्होंने किसी के साथ घुमा फिरा होगा, तो ये अननेसेसरी डाउट कर रही है. उसमें सच्चाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. तो ये सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन होने दो. तो वो थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन से बाहर होना चाह रहे हैं. तो अभी ये लोग शायद एक दूसरे से दूर दूर हैं. दे मे बी away from each other currently, they may not be together. Okay, but can come back. Okay, yeah. तो ये है इनकी करंट फीलिंग्स अभी, या करंट एनर्जीज. अभी ये देख लेते हैं कि प्रियंका की कैसी हैं करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स अंकित. बहुत नाराज़ है ये बंदी.
Okay, this girl is like furiously mad on this man. Okay, furiously mad on this man. बहुत नाराज है. ओके, ये कुछ भी कर देगी उसका. कोई भी डिसीजन लेंगे, शट कलम एक्ट ओ काइंड ऑफ. और साथ में डर भी रही है लूज करने के लिए. मतलब शी फील्स दैट इफ शी वांट्स शी कैन पुट एन एंड टू द स्टोरी. एट द सेम टाइम शी डजंट वांट टू लूज आउट ऑन दिस गाय. ठीक है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ख़त्म भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ख़त्म भी नहीं करना, बिकॉज मैं इसे नहीं अपने से दूर देख सकती हूँ, लूज़ नहीं करना चाहती हूँ. ओके, तो एक राम कहानी फिर से शुरू होगी इनके बीच में. ओके, या कोई होगा बंदा जो मैसेंजर का काम करेगा, तरह तरह के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जो रॉन्ग भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं, इनको फीड करेगा कुछ मैसेजेस के थ्रू, टेक्स्ट मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, या पर्सनल मीटिंग के थ्रू, या वाया सम बॉडी. सम मैसेजेस इनके पास जा रहे हैं जो बैड भी हो सकते हैं. देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, तो मिक्सड ऑफ मैसेजेस जो इनको कंफ्यूज भी कर सकते हैं और डरा सकते हैं कि अरे ये अच्छा है या बुरा है. तो रॉन्ग मैसेजेस भी कन्वे कर रहे हैं उनको, और राइट काइंड ऑफ मैसेजेस भी कन्वे कर रहे हैं, और बेसिकली कंफ्यूज कर दे रहे हैं उसको, बेचारी को. तो ऐसे भी लोग हैं इनके पास, लग रहा मुझे अभी. लेकिन यार डीप डाउन ये लड़की भी उसको प्यार ही करती है. ओके, या फिर कोई आएगा जो सेटल करेगा दोनों के बीच. यस, a small apology can mend the thing, a small apology can fix the thing. Okay, तो हो जाएगा इनके बीच में. अच्छा, तो maybe somebody will intervene, and then again some new story with a small baby step again will happen. Okay, this will happen all of a sudden when you might not have even expected that. So this will happen. तो चलो ठीक है, ऐसा ही चल रहा है इन लोग के बीच में. सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे. सो अंटिल आई मीट यू अगैन गाइज, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स. एंड एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड आप लोग को अभिया का भी चाहिए. अभिया ने मैंने उसकी अभी तक नहीं लेना, तो उसकी भी लेंगे. ये कौन है? जिया एंड अभिषेक. यस, एंड और किसकी चाहिए थी? हाँ, तो वो हैपनिंग कपल की, इसकी उसकी मत दो. ये मेघा इसके साथ है, वो सब कोई नहीं है यार. वो मेघा नहीं है उसके साथ, वो सब ऐसे ही है, पासिंग क्लाउड्स है वो सब. मेघा, अदिति, फिर और कौन है मालूम नहीं, सब पासिंग क्लाउड्स है. ये सब कुछ नहीं है. ये बेचारियाँ अगर पसंद भी करती हैं तो वो बंदा तो नहीं करता ना. आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज पुअर गर्ल्स, बट देन दिस गाय इज़ टोटली विद दिस गर्ल. समझे? वो अपना टाइम पास कर रहा होगा. टाइम पास इन द सेंस, अरे उसको मिल रहा अटेंशन, तो वो ठीक है. लड़कियां भाव दे रही तो क्या करेगा बच्चा. बट यू शुड अंडरस्टैंड गर्ल्स, माई स्वीट लिटिल गर्ल्स, यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस गाय सीरियस ओनली विद दिस गर्ल. मे नॉट बी इन दैट वे कि भाई शादी करेंगे, आई डोंट नो, कर भी सकते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप तो उसकी उसके साथ ही लॉयल्टी दिख रही है अभी. ओके, so bye bye guys.